spoke about suffering here, and then the things which came out were that we have desires, that's why we suffer. So desires could be I want this, I want that, materialistic things and all that. And on the other hand, we're talking about detaching ourselves from everything and be this body also in this physical form. But what about a suffering which is in this body? So right now my spirit, my soul is body and soul fundamentally might be different, but right now I'm inside this body. I can feel the pleasures and the pain. So what about this suffering? One is that I want a big house, I want bigger job, big company, big position. Physical discomfort. One is that. Physical. You are asking about physical discomfort. How do we? Actually, again, the intellectual understanding, sharpness to understand things. Physical discomfort is different from the suffering. Suffering is interpretation of that physical discomfort. The amount of physical discomfort you are feeling, it's real. So you have to handle it. But when you interpret that discomfort, that becomes suffering. We have seen many saints going through tremendous physical discomfort, but you can see a divine smile, you can see a great peace in their lives. Have you seen Raman Maharishi's popular photograph? Ramana Maharishi's, that popular photograph you see everywhere. That is, I think, few weeks before his death, and he was suffering through cancer, and body was in great suffering. But see his face, see the face of that man, eyes of that man, smile. It is beyond, because he is not attached to that suffering, but he is not denying that suffering. It is not like denying. You know this discomfort is here, and you are treating whatever you can do, you are doing. You know this much you can do and this much you can't do. So you have accepted. But you are not interpreting, it should not happen. Why it happened to me? Why it happened to my loved one? Why? You are not asking this type of questions. Clearly and practically you are seeing that discomfort and that pain, and believe it. In this scenario, we can handle that pain more easily. We can handle every discomfort very spontaneously and very smoothly. That and miraculous healings happen. Actually, in medical scenario, we many times see miraculous healings. Actually, when that miraculous healing happens, there is a great acceptance of that pain. When you accept body is in pain, and you don't analyze that pain, you don't analyze emotional analysis and mental analysis, suddenly something happens. So actual pain will be there, actual damage will be there, but interpretation will not be there. That is the main suffering. So I am not saying discomfort will not be there, pain will not be there. I am not saying like this. It will be. Pleasure will be there, pain will be there. Amounts may vary. In everybody's life, amounts will vary. Even in any saint, even in any avatar, in anybody's life, pain and pleasure both will remain. But in saint's life, there is no identification, so there is no suffering. In ordinary person's life, there is identification, so there is suffering. Suffering is always mental. जो सफरिंग एक बेसिक हमारा जो मॉडल है फैमिली का, जो हमारी सोसाइटी का एक बेसिक फैमिली मॉडल है, तो उसके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं और उसमें भी हम लोग सफरिंग महसूस करते हैं. तो चाहे ना चाहे हमें वहीं रहना है और फिर जो हम लोग सफरिंग महसूस करते हैं, तो उसमें
मेडिटेशन का क्या रोल हो सकता है कि फैमिली में और हार्मनी आ जाए? मेडिटेशन का यही रोल हो सकता है कि वो जादू नहीं कर सकता, लोगों को समझना पड़ेगा। और मेडिटेशन से अगर वो एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मेडिटेट करेंगे और एक दिन जादू हो जाएगा, इट विल नेवर हैपन। दे विल हैव टू अंडरस्टैंड, उनको समझना ही पड़ेगा बात को। फैमिली में सफरिंग क्यों है? जस्ट आउट ऑफ दैट स्टूपिड ईगो, थ्रू दैट स्टूपिड ईगो। मैं सही हूँ, तुम गलत हो, तुम गलत हो, मैं सही हूँ। बस ये ऐसा होना चाहिए, वह वैसा होना चाहिए, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको वैसा नहीं होना चाहिए। हमको पूरा पूरा एक्सेप्ट नहीं करना आता है लोगों को। लोग जैसे हैं उनको पूरा एक्सेप्ट करना है। लोग जैसे हैं वैसे ही हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। फिर आउट ऑफ सेल्फिश मोटिव्स, आउट ऑफ ग्रीड, आउट ऑफ फियर हम लोग फाइट करते हैं। ग्रीड और फियर टोटली बेसलेस है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। हम मान के चलते हैं कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा नहीं होगा, अगर हमने इस इंसान को थोड़ा दबाया नहीं तो हमारा काम नहीं होगा, तो हमको मैनिपुलेट करना ही पड़ेगा। काम वैसे भी नहीं होता आपका। आप देखते हैं कि आपकी सारी चालाकी के बाद भी वो काम नहीं होता, और आपके सारे इनोसेंस के बावजूद काम हो जाता है। फैमिली में यही सारा का सारा डिस्प्यूट है। लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे ये जो विनय ने प्रश्न उठाया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्पिरिचुअल लाइफ में और एक्चुअल लाइफ में रिलेशनशिप्स ही हैं। बाकी ये सब जो बातें हैं स्पिरिचुअल, आत्मा, परमात्मा और वगैरह वगैरह, जितनी एनर्जी, कुंडलनी, कॉन्शियसनेस, सब हमारे लिए फ्यूटाइल हो जाती हैं अगर हम वही नहीं समझ पाते हैं। फंडामेंटली तो हम किसी का ह्यूमन बीइंग की तरह से ऑनर नहीं करते। सबसे बड़ी चीज़, हम लोगों को यूटिलिटी आइटम मानते हैं। हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक आदमी हमारे सामने बैठता है, चाहे हमारा स्पाउस हो, हमारे पेरेंट्स हों, बच्चे हों, हम यूटिलिटी आइटम की तरह देखते हैं। कितना काम का आदमी है, कितना पैसा दे सकता है, ये हमारे कितने काम आएगा, ये तो क्या, ये हमारे काम क्या आएगा, बेकार आदमी है। तो हम ऐसे देखते हैं। डाइवोर्सेज भी इसी पे होते हैं। अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तुम कुछ भी तो करने लायक नहीं हो, तुमने किया क्या मेरे लिए, चलो डाइवोर्स हो जाए। तो हम फिर वो उस तरह से मूव करते हैं। लोगों को, अभी एक आदमी बैठा हो और आपको उसका स्टेटस ना पता हो, आप उससे मिसट्रीट कर सकते हैं, मिसबिहेव कर सकते हैं, और वो अपना स्टेटस रिवील करे, आपकी आंखें खुलने लगती हैं। जो आंखें भी ऐसे होती हैं वो ऐसे बड़ी होने लगती हैं। ये रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, सफरिंग, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं डील करते। आप उसको यूटिलिटी की तरह। एक इंसान आपकी लाइफ में है, अलाइव है, सब ट्रेमेंडस थिंग्स, मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। उस वैल्यूएबल गिफ्ट को देखिए, एंजॉय करिए। कल को वो नहीं होगा, फिर कल को तुम भी नहीं होगे फिर। तो रिलेशनशिप्स के लिए मेरी एक ही थेरेपी है। बाकी फिलॉसफी में जाएंगे तो वो 2 घंटे उस पर बात करेंगे। ऐसे किसी से बस मिलो जैसे ये बस आखिरी बार मिल रहे हैं। जब भी अपने लव्ड वन को देखो या किसी को, मान के यही चलो ये आखिरी मुलाकात है, लास्ट मीटिंग, कोई सफरिंग नहीं होगी। हम मानते हैं भी 4 साल रहना है तो एक दूसरे की लाइफ को हमको हेल बनाना है। तो अगर हम ये माने, और जब लोग मर जाते हैं, कभी जाइए उनके मातम पुरसी जो होती है, सब कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। और जिंदा रहते हुए मैंने एक किस्सा पढ़ा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो शेयर करेंगे। तो एक गांव में एक सज्जन मर गए, तो वहाँ रवायत थी, ऐसा परंपरा थी कि कुछ अच्छी बात बोली जाए तभी अंतिम संस्कार किया जा सकता है, उसको आग दी जा सकती है। और ये सज्जन इतने बदमाश थे, लोगों को इतना सताया था कि गांव में कोई बंदा अच्छी बात बता ही ना पाए कि क्या अच्छी बात बोलें इसके बारे में। हमको तो हमेशा परेशान के सताया, सोच के भी वो नहीं सोच पा रहे थे। तो एक सज्जन इंटेलिजेंट थे, वो उठे, उन्होंने कहा कि भाई अपने भाई की तुलना में देवता थे। और उनका अंतिम संस्कार हो गया।
तो हम लोगों की जो रिलेशनशिप का बिहेवियर कुछ ऐसा ही है, उसको हटा के लोगों की लाइफ को वर्थ देना, उनकी जो लाइफ है। इसीलिए मैंने मेडिटेशन भी जो आज आपको दिया, उसको आप लोग घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इट्स एंजॉइंग योर अलाइवनेस। और जब आप अपनी अलाइवनेस को एंजॉय करते हैं, फील करते हैं, दूसरे के अलाइवनेस का रिगार्ड करते हैं, फंडामेंटल थिंग। कोई रिलेशनशिप में सफरिंग नहीं। यूटिलिटी ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप को नहीं बनना है, और यूटिलिटी ऑब्जेक्ट हो, इससे अच्छा अकेले रहना। अगर आप यूटिलिटी बनाते हैं, हम लोग टुगेदर हैं तो ये केवल एक गिफ्ट है, लेकिन हम कंडीशनड ऐसे हो गए हैं कि अगर हमको अभी भी पता, अभी यहाँ भी सबके नाम पते दिलवाए जाएं, अभी एक्सपेरिमेंट हम लोग करके देख लें, और धीरे धीरे लोगों को पता हो कौन कितना काम का है, वैसे वैसे ग्रुप बन जाएंगे। काम वाले लोगों की तरफ ज़्यादा ग्रुप बन जाएगा, बेकार वाले लोग उधर पड़े रह जाएंगे। दैट इज आवर रूटीनी वे एक्चुअली। तो लाइफ का रिगार्ड करिए, लाइफ का रिगार्ड करिए, लाइफ में कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई सफरिंग नहीं होगी। I don't have a question eventually, but That is very beautiful state actually, not having a question. No, currently I don't have any question, but I have experienced through my last interaction with eventually. During our last 3 days Shivir we attended, the takeaway for me was that the way he mentioned that life is a leela and you have a role to perform here. So he gave us a technique. He said that every day in the morning when you get up, tell yourself that you are an actor and you have to perform your role brilliantly. Every day when you tell before getting up, leaving your bed, tell yourself that it should be a perfect role that you are performing for that day. And I have been doing that. There are many days when I forget to tell myself in the morning, but then mostly I try and tell myself that. And then the condition was that you will only perform this as an actor. You will not get attached to your role. Not as a doer, as an actor. Yes. So I have tried to do that and I have benefited a lot. So Exactly. I hope this answers many questions that boredom and how do we what are the expectations that we have from each other, from family and from your husband and from your children. Those expectations do not come to an end, but then it helps. At least this exercise has helped me. Exactly, this is the most beautiful thing, most beautiful exercise and most beautiful state, that you don't have any question and you are trying to be actor. That is the whole point of spirituality.